Hi guys, welcome to Learn Online. This will be the Power Set 8 and it will be consisting of questions on puzzles. आज हम लोग puzzles पे सॉल्व करने जा रहे हैं. पिछले सेशन में हमने सॉल्व किए थे puzzles जो थे randomly taken और इस बार हम सॉल्व करेंगे questions जो previous year IBPS RRB में आ चुके हैं. तो हमें मिलेगा एक hands on experience और इसमें देखिए ये सब memory based है, ये exactly same नहीं है और थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो हमने कल सॉल्व किया था. कल हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उसमें सिर्फ दो ही थे चीजें थी, एक था पर्सन और दूसरा था मंथ्स. उसका बर्थडे कैलकुलेट करना था. आज बर्थ मंथ कैलकुलेट करना था. इसमें है दो चीजें, इसमें है मंथ और डे भी स्पेसिफाइड है. यस, लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज. यस, 10 people are celebrating their birthday on 15th and 20th of 5 months. 20th and 15th of 5 months. Okay. 5 months I'll quickly take it down. लिख लेता हूं मैं. कौन से 5 महीने हैं? जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून. जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून और एक और है नवंबर. एक और है नवंबर. यस. इन 5 महीने के लिए दो अलग डेट्स दिए गए हैं. चलिए देखते हैं दो डेट्स क्या है. अलग अलग डेट्स हैं 15 और 31 तारीख. 31, 15 और 31. 15th and 31. Okay, okay. It is 20th. Okay, it is 20th. I'm sorry. 15 and 20th पे पैदा हुए थे. Okay, let's see. January, March, April, May, June, and November. Okay. Now, let me start with the statements that I have there. What are they? G celebrates birthday after F. G celebrates after F. F पहले आएगा. Can I write it as F is greater than G? F is greater than G? Yes, I can write it as F is greater than G. A celebrates his birthday on 15th of month. A celebrates his birthday on 15th of month which has 31 days. A celebrates it on 15th and the month which has 31 days. And the month which has 31 days. How many months do I have here which has 31 days? Let's see. January has 31 days. March has 31 days. April 30. June 30. November 30. Only 2 months I have which have 31 days. Yes. Do you agree with that? If you don't know that, आपको अगर पता नहीं है तो हमें पता है नकल्स को मेजर करना. जनवरी होता है, जो भी नकल्स उभरे हुए निकलते हैं वो सारे 31 दिन वाले होते हैं, मतलब 31 डेज वाले. यस, 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. हाँ, ये जानते हैं आप लोग, तो उसके हिसाब से ये लिख लेंगे जल्दी से. और एक पॉसिबिलिटी के लिए मैं रख देता हूँ यहाँ पे 15th और 20th को. हम वी विल ट्राई टू सॉल्व इट इन मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. हम कम से कम पॉसिबिलिटी लेने की कोशिश करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो ये यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये ले रखा है. चलिए देखते हैं. नाउ A has his birthday on 15th and in a month which has 31 days. Okay, so what are the two possibilities? A can either come here or A can either come here. 15th पे ही आना चाहिए. Next, अगला देखते हैं. Yes, exactly two people celebrate birthday between that of A and E. Two people between A and E. Okay, the next statement. Exactly 3 persons celebrate birthday between that of E and D. 3 people between E and D. Yes. Now B celebrate birthday just before I, but not in June or November. B celebrate birthday just before I. How do we represent it? Just before I, but not in June or November. Not. अब नॉट नहीं करता है, जून और नवंबर में नहीं करता. मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ अपने रेफरेंस के लिए. बी जून में नहीं करता है, ना ही नवंबर में करता है. बी इन 2 महीनों में आ ही नहीं सकता. आगे पढ़ते हैं. ओके. ऑल्सो बोथ बी एंड आई सेलिब्रेट बर्थडे इन द सेम मंथ. बी और आई बोथ सेलिब्रेट इन द सेम मंथ. ऐसे में लिख देता हूं. Yes, same month I have represented it with a circle. Circle बना के बोल दिया है कि ये दोनों एक ही मंथ में करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. The number of persons celebrating birthday before D is same as the number of persons celebrating birthday after C. Okay, before D. Okay, I'll write it here again. Before D और after C.
ये बिफोर, ये आफ्टर, दोनों क्या है, सेम है. ओके, both are same. Before D and after C both are same. So the number of persons celebrating birthday before D is same as the number of persons celebrating birthday after C. Both J and H celebrate birthday in the same month. J and H celebrate in the same month. I have represented it with a circle. And J celebrates a birthday. J celebrates a birthday before H. J celebrates birthday before H. बिफोर एच बोला है, इमीडिएटली बिफोर बोला है क्या, नहीं बोला है. बिफोर एच बोला है, कभी भी हो सकता है. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिफोर एच, बिफोर एच. यस, नाउ लेट्स सी. सो दिस इज द डाटा दैट इज गिवन टू अस. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, लाइक आई सेड, ए कैन कम हियर और ए कैन कम हियर. इफ ए इज हियर, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट वी हैव. इफ ए इज हियर, अगर ए यहां पर है तो दो लोग छोड़कर ई बनाना है. एक दो लोग छोड़कर ई बनाना है. ई यहां पे बन गया अपना. यस, नेक्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन अपना हो गया तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं. ई और डी के बीच में तीन लोग होने चाहिए. यस, देयर मस्ट बी 3 पीपल बिटवीन ई एंड डी. 1 2 3. सो माय डी विल कम हियर. नाउ दिस कंडीशन ऑफ माइन इज आल्सो डन. यस, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट condition which spoke about D. Yes, here is one condition which spoke about D, and it says the number of people before D is equal to the number of people after C. Number of people before D 1 2 3 4 5 6 और एक है 7. Now number of people before D must be equal to number of people after C. मतलब C कहाँ पे आएगा? There is only one position, that is C. 1 2 3 4 5 6 and 7. Yes. So you understood what I did here. The number of people before D must be equals to number of people after C. After C. Yes. So I wrote my C here. Now start thinking. B and I, same month. B and I must be in the same month. Now, where are two boxes in the same month left out free? कहां पर दो जगह एक महीने में खाली पड़े? एक तो यहां पे, एक तो यहां पे. लेकिन मैं अगर यहां पर देखूं, क्या लिखा हुआ है? बी इस ना जून में आ सकता है ना नवंबर में, तो बी आएगा कहां? बी के लिए बचा हुआ एक ही जगह है, बी यहां पे आएगा. अगर बी यहां पे आएगा तो सेम मंथ में आई यहां पे आएगा, और आई से पहले बी आएगा. आई से पहले बी आएगा, ना जून में है ना नवंबर में. कंडीशन अपना फिक्स हो गया. अब आगे देखते हैं. जे और एच सेम महीने में आना चाहिए. जे और एच यहीं पे आ सकते हैं. एच और जे है कि जे और एच है नहीं पता, लेकिन जे एच से पहले आना चाहिए. कितना पहले नहीं पता था, लेकिन जे पहले आ गया एच से. जे और एच बन गया. अब बचा है दो पोजीशन. इस दो पोजीशन में कौन आया? एफ इज ग्रेटर देन जी बोल रहा है ना. हमने जी को मार्क किया ना, एफ को. तो एफ इज ग्रेटर देन जी मतलब एफ यहीं पे आएगा, क्योंकि इज ग्रेटर देन जी और जी यहां पे आएगा. तो अपना टेबल बन गया. सेकंड पॉसिबिलिटी की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें. यस, जरूरत ही नहीं पड़ी. तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं. मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ देता हूं, एक दो. वो आपको डिस्प्ले नहीं होंगे यहाँ पे, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं. हु सेलिब्रेट्स अ बर्थडे ऑन 15th of April? साधारण सा क्वेश्चन है. 15th of April पे कौन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है? बी. हु सेलिब्रेट्स बर्थडे जस्ट आफ्टर आर? जस्ट आफ्टर आर, जस्ट आफ्टर आर कौन सेलिब्रेट करता है? वेयर इज आर? ओके, क्वेश्चन है ये. आर का मतलब मुझे देखने दीजिएगा. हु सेलिब्रेट्स बर्थडे जस्ट बिफोर, क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में? यस, देयर इज अ लिटिल ग्लिच विद द क्वेश्चन. हु सेलिब्रेट्स बर्थडे जस्ट आफ्टर जी? क्वेश्चन पूछा है जस्ट आफ्टर जी. आर नहीं, जी है, तो है डी हो जाएगा. Yes, similar type of questions have been asked and they have been put up in the description. Please try to solve it on your own. खुद से कोशिश कीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा. कॉपी कीजिए. हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए. यहाँ पे यहाँ क्या बोल रहा है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर 8 डिफरेंट बॉक्सेस. बॉक्सेस के बारे में क्वेश्चन है. हाँ, यस, दे आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट बॉक्स 1 इज एट द बॉटम. बॉक्स 1 सबसे नीचे है एंड बॉक्स 2 इज अबव इट. बॉक्स 2 उसके ऊपर है, एंड सो ऑन सच दैट द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 8.
ओके, टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 8, मतलब 8 यहां पे लिख देता हूं, 7 6 5 4 3 2 1. Bottom most box is 1, top most box is 8. I'll quickly draw lines here. Yes. Next. Now, let's read the next statement. What does it say? They are arranged in such a manner. हो गया, ये हो गया था. Box number 3 तक हो गया था. R is box number 3. R is box number 3. R is box number 3. There are only 2 boxes between the box R and box V. Between box R and box V, there are only 2 boxes. Yes. Next thing. Box W is placed immediately above box Q. Box W is placed immediately above box Q. How do we represent that? Using an arrow symbol. Yes. Now, there is only one box between the box T and box U. There is only one box between box T and box U. Next. Box T is placed above box U. Box T is placed above box U, but how much above? We do not know, so I am placing an arrow in between them. Yes. अगर साइड में है तो immediately above, अगर बीच में है तो कितना above हमें नहीं पता है. आगे बढ़ते हैं. Box T is placed immediately above box U. There is only one box between box R and box S. There is only one box between box R and box S. Next, box S is somewhere below T. Box S is somewhere below T. Below T. It can be below U and below T, or box S is somewhere below T. इन दोनों को मैं merge कर दूं, अगर merge कर दूं तो ये S यहाँ पे भी आ सकता है, इसके साथ U के साथ S आ सकता है, लेकिन इसको ऐसे ही रखता हूँ फिलहाल में और आगे बढ़ता हूँ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए. ओके, बिटवीन R and V there are 2 boxes. R and V there are 2 boxes. So 2 boxes के गैप पे V बनाने के लिए हमारे यहाँ पे जगह है क्या? नहीं है. तो V कहाँ पे आएगा? 2 बॉक्स छोड़ के V पक्का यहाँ पे आएगा. V तो यहीं पे आएगा. S. Between R and S there is only one box. R and S there is one box. R and S I can take S either here, यहाँ पे लिख सकता हूँ, या फिर एक बॉक्स छोड़ के S यहाँ पे लिख सकता हूँ. तो मैं दोनों कंडीशन फटाक से ले लेता हूँ. R and S यहाँ पे लिख सकता हूँ, या फिर R एक बॉक्स छोड़ के S यहाँ पे लिख सकता हूँ. अगर मैं S यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखते हैं T and U के बीच में एक डब्बा होना चाहिए. There must be one box between T and U. T and U, there must be one box. Now, if I place my T here, U can come here. Yes, this can be done. If I place my T here, अगर मैं T यहाँ पे रखता हूँ, तो U आने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि R पहले से बैठा हुआ है यहाँ पे. अगर मैं T यहाँ पे प्लेस करता हूँ, U के लिए जगह यहाँ पे बन गया. लेकिन Q के इमीडिएटली अबव W होना चाहिए. अगर मैं T और U को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो Q के इमीडिएटली अबव W बनने के लिए कोई जगह बची है क्या? नहीं है. मतलब इसका मतलब साफ बनता है कि मुझे T को यहीं पे बनाना है. अगर T यहाँ पे बन गया, U यहाँ पे आ गया. T के नीचे U है, somewhere below T we have U and somewhere below T we have S. दोनों कंडीशन सैटिस्फाइड है. आगे देखते हैं. Immediately above Q I should have W. The only place where I can have, एक ही जगह है जहां पर मैं Q के ऊपर immediately above W ला सकता हूँ, वो है ये जगह, और मैंने बना दी. एक और लेटर बचा हुआ है, वो है अपना P. तो मैंने उसको यहाँ भर दिया, मुझे यहाँ पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी. इसी में खत्म हो गया. Yes, able to understand the questions with respect to this. इसके questions आप डिस्क्रिप्शन में देख के सॉल्व करने का वापस से कोशिश कीजिए. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा. So copy this down. तो अपना अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? 7 people PQRSTUV live in a 7-floor building where topmost floor is numbered 7 and the bottommost floor is numbered 1. So जल्दी से 7 topmost floor, 7 6 5 4 3 2 1. Yes. Now let's move. क्या बोलता है आगे बोलता है 2 people are living between Q and R. Okay,
2 people are living between Q and R. Q and R, there are 2 people. Fine. Next, Q lives just above P. Q lives just above P. Okay, how do I represent it? Just above P. Q lives just above P. Not more than 3 people are living above P. Above P, maximum how much? Not more than 3 people. Not more than 3 people. 3 से ज्यादा नहीं रहते. 3 हो सकते हैं या फिर 3 से कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते. ठीक है. Not more than 3 people are living above P. Not more than 3 से ज्यादा लोग P के ऊपर नहीं रहते. Next, S is living on an even numbered floor. S is living on an even numbered floor. S even number floor पे रहता है. Yes. And lives immediately above V. And lives immediately above V. Immediately कैसे मार्क करता हूं मैं? Arrow बगल में होगा. Yes. Immediately above V. U is not living on floor number 5. U is not living on floor number 5. Okay. Not living on floor number 5. Yes. U is living above T. U is living above T. How much above or immediately above? Nothing is mentioned. U is living above T. I've written it. ऐसे लिख दूंगा. U T के ऊपर रहता है. ठीक है. चलिए अब इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं जल्दी से. Now 3 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे. Maximum 3 people can be above P. So एक भी हो सकता है P के ऊपर, एक ही बंदा हो सकता है P के ऊपर, या फिर 2 बंदे हो सकते हैं. There can be 2 people above P. या फिर 3 लोग हो सकते हैं P के ऊपर. ठीक है. Now P के ऊपर अगर सिर्फ एक ही बंदा है तो वो कौन होगा? Immediately above P, who do we have? We have Q. Next. Now between Q and R, how many people are there? Q and R के बीच में 2 लोग हैं. Between Q and R, there are 2 people. So I'll place here R. So immediately above P, I have Q. Immediately above P, I have Q. And between Q and R, there are 2 people. 1, 2, R. 1, 2, R. Yes. Now, so this condition is done. This is done. So max 3 people is done. Now, S has to be on an even number floor. S has to be on even number. Even number वाले floor पे S रहेगा. तो S कहाँ पे आ सकता है? 6, 4, 2 ही बचा है. S has to come here and V has to come here. And here in this case, where can S come? S can come here? No, because V has to be immediately below S. So S has to come here and V has to come here. Now S वाला condition तो यहाँ पे fail ही हो गया. Yes, क्यों? सारे even places, यहाँ पे बचा है. सारे even places S को accommodate ही नहीं कर सकते. They cannot let S sit. S बैठ ही नहीं सकता. यहाँ पे बैठेगा तो V यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये अपना बनेगा ही नहीं. Now ये 2 कंडीशन हमारे चल रहे. ये तो खत्म हो गया. चलिए आगे देखते हैं. बिटवीन U एंड T, U कैनॉट सिट ऑन नंबर 5. U यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो U कहाँ पे बैठेगा? यहीं पे बैठेगा. अगर U यहाँ पे बैठ गया तो U T के ऊपर है क्या? नहीं है. तो ये वाला भी गलत हो गया. अब देखते हैं. U 5 पे नहीं बैठेगा, तो U के लिए जगह कौन सी बची है यहाँ पे? या फिर यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है. लेकिन हमें U चाहिए T के ऊपर चाहिए U. तो मैं U यहाँ पे रखूंगा, T यहाँ पे रखूंगा. तो बन गया अपना क्वेश्चन. सिंपल सा था क्वेश्चन. बस इस चीज को समझना था कि मैक्सिमम 3 पीपल आर अबव P और उसके 3 केसेस बनते थे. तीनों केसेस को एक्चुअली बनाने की भी जरूरत नहीं थी. बहुत सिंपल था. जैसे ही मैं P को यहाँ पे बनाता हूँ, मैं देखता हूँ Q यहाँ पे बैठेगा. मैं बिना लिखे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा चांस था. लेकिन एज ऑफ नाउ वी आर इनटू प्रैक्टिस मोड, तो मैं हर एक पॉसिबिलिटी आपको समझने के लिए तीनों पॉसिबिलिटी लेके बना रहा हूँ. आगे हम जैसे जाएंगे हम लोग विल क्रिएट यूज एज मेनी, जितने हो सके उतने कम पॉसिबिलिटीज यूज कर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे. वेल गाइस, थैंक यू.